Perfect competition is a theoretical market structure in which competition is at its greatest possible level. Some markets, such as stock exchanges and commodity markets, approximate perfect competition. But a true state of perfect competition in a market is not attainable in real life. In theory, if perfect competition existed, resources would be allocated in the most efficient way possible. As a concept, though, perfect competition is useful because it functions as a standard to measure the efficiency and effectiveness of real-world markets. A perfectly competitive market contains these 5 elements. 1. All firms sell an identical product. 2. All firms are price takers. They cannot control the market price of their product because price is determined by supply and demand. 3. All firms have a relatively small market share. There are no monopolies. 4. Buyers have complete information about the product being sold and the prices charged by each firm. And 5. The industry is characterized by low barriers or no barriers to enter and exit an industry. As an example of a perfectly competitive market, imagine a group of fishermen who all sell the same type of rainbow trout at a local market. Each stand at the market sells each rainbow trout at $1. This is just enough for each fisherman to pay for his costs and have enough money to live on. Now assume all the fishermen get together and agree to raise the price of each fish to $1.50 so they can make more money. This strategy only works for a short period of time due to the very low to non-existent barriers of entry to the fishing business. The upfront investment in becoming a fisherman is relatively low. New fishermen know that they can make money selling each fish for $1. These new fishermen can easily set up their own stands at the local market and start selling rainbow trout for less than the $1.50 collusion price. Very shortly, because of perfect competition, fish prices at every stand return to $1, as their product won't sell at the inflated price. Hello students, in last lecture of microeconomics, we had studied about the perfect competition, right? We had seen the meaning of the perfect competition, we had seen the features of the perfect competition, and we had also seen that how the price discrimination is there under the perfect competition, right? कि price जो है वो कैसे determine होती है perfect competition के अंडर में, right? So now we will move forward to the next topic, that is of monopoly, right? Generally मोनोपोली वर्ड जो है हम यूज करते हैं अपने रेगुलर रूटीन लाइफ में भी, राइट? कि वो पर्टिकुलर पर्सन की मोनोपोली है इस वक्त में, राइट? उसकी मोनोपोली है। एक्चुअल में मोनोपोली जो है वो वर्ड इटसेल्फ डिस्क्राइब कर सकता है कि क्या है वो, राइट? क्योंकि मोनो का मतलब है सिंगल पर्सन, राइट? और पोली का मतलब है प्रोड्यूसर और सेलर। When there is a single seller in the market, right, it's called a monopoly, right? No other products are being produced other than that producer, right? कोई भी दूसरा कोई भी पर्सन जो है वो उस टाइप की या वो प्रोडक्ट नहीं बनाता है या नहीं बेचता है, राइट? तो उसे हम मोनोपोली कहते हैं। जनरली अगर हम लोकल मार्केट में देखने जाए तो हमारी फेवरेट चीजें अगर हम देखने जाए मोरबी में तो मान लीजिए पफ सैंडविच है, राइट? तो आज भी अगर आप बच्चे को पूछोगे तो वो वही देगा कि भवानी पफ, राइट? क्यों ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां उसकी मोनोपोली है, राइट? उसकी एक एक्सपर्टाइज है मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसिंग करने में, पफ बनाने में उसकी क्या है, एक्सपर्टाइज है, राइट? ऐसे बहुत सारे पफ तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन उसके जैसा कोई नहीं बेच सकता है। आप एग्जाम में उसका एग्जांपल मत लिख देना क्योंकि दूसरे पेपर चेकर को नहीं पता होगा, राइट? तो उसका एग्जांपल मत लिख देना, ये तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मैं आपको लोकल लेवल के एग्जांपल्स दे रहा हूं, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मीनिंग, राइट? मोनो मींस वन, पोली मींस सेलर और प्रोड्यूसर, राइट? ओके, अब उसके फीचर्स दिए हुए हैं, तीन चार फीचर्स है। फर्स्ट वन इज सिंगल सेलर, right? When there is a single seller into the market, right? Single seller or a single producer into the market who is selling the product, right? Then it is called monopoly, right? तो उसको हम monopoly कहते हैं, right? Okay. Second one is absence of close substitute.
सी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट इज ओके, बट यहाँ पे एक दूसरा भी चीज है कि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है वो कहीं पे भी नहीं है, राइट। उसके जैसा या उससे मिलता जुलता या उसके बदले में कोई और प्रोडक्ट यूज कर सके वैसा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब मैंने आपको समझाया था, राइट, कि एक प्रोडक्ट की जगह कोई और उसके जैसी या कुछ सिमिलर प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। तू नहीं तो तेरा भाई, लेकिन कोई तो मेरे काम आएगा, राइट। इन द सेम वे क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट, कि अगर से फॉर एग्जांपल एमआई का मोबाइल नहीं तो कोई और, राइट, कोई और मोबाइल वन प्लस का मोबाइल, पर कोई तो होगा ही, राइट। सो देयर इज अ एब्सेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, राइट। ओके, द थर्ड वन इज क्लोज्ड एंट्री, मतलब कि जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि फ्री एंट्री फ्री एग्जिट था, राइट। यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड एंट्री है, मतलब यहाँ पे जो कंपटीशन जो है वो क्लोज्ड है, मतलब वो एक पर्टिकुलर सेलर के ऊपर ही वो सीमित है, राइट। उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता है, राइट। दिस इज जस्ट थियोरेटिकल कांसेप्ट स्टूडेंट्स, राइट। मैं भी जानता हूँ कि पर्टिकुलरली अगर ऐसा करना वो एक डिफिकल्ट है, क्योंकि आज में अगर भवानी पफ का मैंने आपको एग्जांपल दिया तो उसके अलावा बहुत सारे पफ है मार्केट में, नहीं है ऐसा नहीं है, राइट। पर फिर भी जो मोनोपोली उसकी है कुछ अलग से बनाने में, राइट, उसके जैसा कोई नहीं बना पाता है, राइट। ओके, देन लेस देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, इसके लिए आपको जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वो टाइप्स थे वो याद होने जरूरी है। कितने टाइप्स थे? 5 टाइप्स वेयर देयर, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, राइट। ये याद होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व लेस देन द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, मतलब कि वहां पे प्राइस में अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो ज्यादा फर्क नहीं आता है, राइट। लेस देन इलास्टिक डिमांड कर्व, ये आपको याद होना चाहिए, लेस देन 1 जो मैंने आपको सिखाया था, राइट। ओके, देन देयर आर द टाइप्स ऑफ मोनोपोली, राइट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ टाइप्स हम यहाँ पे देखते हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल, बाय नेचुरल मतलब वो कोई ह्यूमन मेड मोनोपोली नहीं है, राइट। कोई भी मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ और फिर उसका जैसी प्रोडक्ट कोई नहीं बना पाता है तो वो ह्यूमन मेड हो गई, ये तो नेचुरल मोनोपोली है, राइट। से फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज की ऑयल रिसोर्सेज वो नेचुरली वहां पे आती है। अफ्रीका का माइन रिसोर्सेज मतलब वहां पे डायमंड्स वगैरह निकलते हैं तो वो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके लिए ह्यूमन मेड एफर्ट्स कोई किया नहीं गया है, राइट। डेनमार्क की मिल्क इंडस्ट्रीज, राइट, तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट। यहाँ पे उसने कोई ह्यूमन मेड कोई भी एफर्ट्स या कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ है, राइट। तो इस तरीके की जो मोनोपोली होती है उसको हम नेचुरल मोनोपोली कहते हैं, राइट। ओके, सेकंड वन इज लीगल मोनोपोली। एक्सीलेंट पॉइंट। आपको आगे जाके थर्ड ईयर में ये चीज आएगी, लीगल चीज, मतलब कि लीगल मोनोपोली कब होती है कि कोई भी चीज अगर हम उसको लीगली रजिस्टर करवाएं कि भाई हमने ये ऐसी प्रोडक्ट बनाई है, इसके ऊपर हमें कॉपीराइट चाहिए, पेटेंट्स चाहिए कि इसके जैसी कोई प्रोडक्ट डुप्लीकेट मार्केट में ना बिके, राइट, तो उसे कहते हैं लीगल मोनोपोली, राइट। तो कई बार सारी प्रोडक्ट्स या ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सबसे ज्यादा ये चीज यूज होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी आज मेडिसिन बनाती है तो उसके ऊपर सीधा कॉपीराइट्स या पेटेंट्स ले लेते हैं, तो ताकि कोई और फर्म उससे ना बना पाए
और अगर उसको बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो इस फर्म के पास से राइट्स लेने होंगे, जो भी पेटेंट और डीलिंग होगा वो उसके पास से लेना होगा और फिर वो बना सकेंगे, राइट। तो ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो कई कंपनीज अपनी वर्षों की मेहनत को, जो कंपनीज ने वर्षों मेहनत की है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे और फिर जाके वो सक्सेस हुआ है, तो इसीलिए कंपनीज क्या करती है, उसके ऊपर पेटेंट या तो कॉपीराइट्स ले लेते हैं ताकि उसके जैसा कोई और ना बना पाए, राइट, कोई और उसके जैसा ना बना पाए, राइट। मोनोपोली की अगर स्टूडेंट्स में बात करूं, यहाँ पे आपको वैसे तो उसको अलग ये एग्जांपल नहीं लूंगा मैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने फॉर्मूला इतने सीक्रेटली रखते हैं कि किसी को पता नहीं चलता है। से फॉर एग्जांपल कोका कोला, राइट, कोका कोला है, पेप्सी है, कि उसका फॉर्मूला आप जहां पे भी जाओगे, यहाँ पे जाओगे, यूएस में जाओगे या दुनिया की कोई भी कंट्री में जाओगे, कोका कोला का जो टेस्ट है आपको सेम टू सेम टेस्ट रहेगा, राइट। तो ये चीजें मतलब सीक्रेसी एक मेंटेन करते हैं वो लोग, राइट। तो वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं, लेट्स डिस्कस दिस फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम वो नेक्स्ट ईयर में समझेंगे, राइट, नॉट इन द नेक्स्ट सेमेस्टर इवन। ओके, देन प्राइवेट मोनोपोली एंड पब्लिक मोनोपोली, इट्स अ वेरी इजी टर्म, प्राइवेट मोनोपोली, राइट। मतलब कि जो भी प्राइवेट फर्म है, जो भी कोई प्रोडक्ट बना के अपनी मोनोपोली क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट मोनोपोली, और उसका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना, और पब्लिक में मेन एम होता है सोशल वेलफेयर का, राइट। और जो भी पब्लिक कंपनी जो भी प्रोडक्ट या तो कुछ भी चीज बनाती है या तो सर्विस देती है और उसमें मोनोपोली क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक मोनोपोली, एंड द मेन एम of public company is to provide social welfare, and main aim of private monopoly or a private company is to provide is to gain profit, right? Okay, then simple monopoly and discriminating monopoly. This monopoly are associated with the term price, वो प्राइस के साथ एसोसिएटेड है, कि से फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर प्राइस है वो सभी कस्टमर्स के लिए एक है, देन इट इज कॉल्ड सिंपल मोनोपोली, राइट। और कस्टमर्स वाइज अगर प्राइस चेंज होते हैं, देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, राइट। कस्टमर वाइज अगर प्राइस चेंजेस होते हैं तो उसको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहते हैं, और सिंपल प्राइस सबके लिए एक है, देन इट इज कॉल्ड simple monopoly, right? And last one is perfect and imperfect monopoly or confident and pessimist monopoly. Pessimist, confident का जो opposite है, that is called pessimist, right? जो imperfect है, जो decide नहीं कर पाता है कुछ भी, right? वैसा pessimist, they are not confident, right? जो कॉन्फिडेंट होता है वो कॉन्फिडेंटली कुछ भी डिसीजन ले सकता है, ऐसा, राइट। सो यहाँ पे है परफेक्ट, दैट इज ऑफ कॉन्फिडेंट, एंड इम्परफेक्ट, दैट इज ऑफ पेसिमिस्ट मोनोपोली, राइट। तो जनरली परफेक्ट और कॉन्फिडेंट मोनोपोली किसे कहते हैं कि फर्म जो है, कोई भी फर्म जो है वो पूरा कॉन्फिडेंट है अपने आप में कि आने वाले सालों में या तो करंटली हमारे जैसा कोई प्रोडक्ट आएगा नहीं, ना तो कोई बन पाएगा, दे आर इनफ कॉन्फिडेंट, राइट। तो उसे कहते हैं कॉन्फिडेंट मोनोपोली या तो परफेक्ट मोनोपोली, राइट। और इम्परफेक्ट और पेसिमिस्ट मतलब कि फर्म जो है दे आर नॉट इनफ कॉन्फिडेंट, उसको डर है कि हमारे जैसी कोई प्रोडक्ट बना लेगा या आने वाले सालों में हम जैसा भी कोई आएगा, right? They will fear about the competition, right? That is called imperfect or pessimist monopoly. But remember students कि यहाँ पे अभी उसकी मोनोपोली है मार्केट में, right? कि अगर आने वाले सालों में कोई और आ जाएगा तो मोनोपोली नहीं रहेगी, right? So that is why it is called imperfect or pessimist monopoly, right? So this is the concept of monopoly.
छोटा सा कंसेप्ट है, आसान कंसेप्ट है और खास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, राइट। एग्जाम में आपको यही पूछेंगे, काइंडली एक्सप्लेन द मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मोनोपोली एंड फीचर्स ऑफ द मोनोपोली, राइट। तो छोटा कंसेप्ट है लेकिन है अच्छा और आपको समझने में भी आसान है। सिर्फ आपको ये सारी चीजें टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स तो आसानी से याद रह जाएंगे, आपको याद रखना है वो सिर्फ है टाइप्स ऑफ मोनोपोली, कि कौन से टाइप में क्या इंफॉर्मेशन आती है या आनी चाहिए, राइट। ओके। In economics, a monopoly occurs when one company is the sole or nearly sole provider of a good or service within an industry. This potentially allows that company to become powerful enough to prevent competitors from entering the marketplace, leading to limited consumer choice, higher prices, and limited response to customer concerns. When the government determines that an unfair monopoly is in place, it can step in to enforce antitrust laws, which can penalize companies monetarily, or even force a breakup of the company. These laws protect consumers and the marketplace from price gouging and lack of competition. There are instances where a monopoly is preferable, however. Imagine what your neighborhood would look like if there were more than one electric company serving your area. The streets would be overrun with utility poles and electric wires as the different companies competed to sign up customers and then hook up their power lines to houses. To prevent this type of chaos, the government allows a utility company to have a monopoly for a certain location or city. But the trade-off is that the government heavily regulates and monitors the utility company, controlling the rates it can charge, its customers, and the timing of any rate increases. Monopolies are also allowed with patented products like pharmaceuticals. The patent holder benefits from being the sole provider of the new medication until the patent runs out, encouraging innovation and research. Students, the next concept is monopolistic competition, right? The first one we had understood the perfect competition, the second one is monopoly, right? And the third one is monopolistic, right? Here the monopolistic means that it is a blend of monopoly as well as competition. Blend means जो हम मैंने आपको कहा था ना कि कोई भी हम मिक्सचर करते हैं, चटनी बनाते हैं तो ब्लेंडर यूज करते हैं, वैसे ही कुछ ब्लेंड हो मतलब मिक्सचर करना हो, that is it is a mixture of monopoly as well as competition, right? Okay, here there are some characteristics of monopolistic competition form, right? The first one is existence of many firms. There are many firms, right? Not a single firm, there are many firms, and each firm is have monopoly or expertise in their product, right? हर एक फर्म के पास अपनी अपनी प्रोडक्ट की मोनोपोली है, राइट? हर एक फर्म एक्सपर्ट है अपनी प्रोडक्ट बनाने में, राइट? ईच फर्म हैज मोनोपोली, right? Okay, the second one is product differentiation. Their product is differentiated from others. Differentiation का मतलब क्या है? दूसरों से अलग होना, right? If I am taking example of mine that Param Mehta, then how Param Mehta is different from others, right? There are too many people in this world. Then how Param Mehta is different from others? क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा क्या फीचर है जो उसे यूनिक बनाता है, राइट? इन द सेम वे आप अपना भी एग्जांपल ले सकते हैं, राइट? कि XYZ कोई भी आपका स्टूडेंट, आपका जो भी नाम हो, कि XYZ वो कैसे अलग है दूसरों से, राइट? आपके अड़ोस पड़ोस में आपके रिलेटिव्स वो आपको सब जानते हैं, क्यों जानते हैं? आप में कुछ ऐसी बात है तभी वो आपको अलग से पहचानते हैं, राइट? तो क्या आप में ऐसी बात है जो आप अलग होते हो दूसरों से? दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, राइट? आपका नाम अलग है, आपके गुण अलग हैं, सभी मैटर्स करते हैं उसमें, सभी चीजें, राइट? सो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, राइट? इन द सेम वे हियर देयर इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. Each and every firm's products is differentiated from others, right? कि हर एक फर्म की जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है अदर फर्म की प्रोडक्ट से, राइट?
हर एक में कुछ न कुछ यूनिक चीजें हैं या तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसा कि मैंने पहले ही पॉइंट में आपको कहा कि हर एक अपनी प्रोडक्ट पे एक्सपर्ट है, हर एक की मोनोपोली है, राइट। मोनोपोली भी है, सामने कंपटीशन भी है, बहुत सारी फर्म्स भी है, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट एक्चुअल में नहीं आना चाहिए, एक्चुअल में आना चाहिए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, राइट। हर एक फर्म अपना अपना यूनिक फीचर अपने अपने प्रोडक्ट की दिखाने की कोशिश करता है, राइट। फिर वो टीवी एडवर्टाइजमेंट हो या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट हो या फिर सोशल मीडिया में कोई ऐड हो, कोई भी ऐड हो, वो अपना 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 फीचर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट में ये नया है, हमारे प्रोडक्ट में वो नया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी फर्म्स हैं, सभी के प्रोडक्ट अलग, मतलब कि कुछ ना कुछ यूनिक चीजें हैं सभी के प्रोडक्ट में, और सभी प्रोडक्ट अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, सभी प्रोड्यूसर्स अपने अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, तो ताकि उसको और फायदा मिले। और एडवर्टाइजमेंट करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ज्यादा होगी, राइट। तो अल्टीमेटली उसकी सेलिंग कॉस्ट, उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा होगी, राइट। देन डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस हैं, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसके मार्केट के हिसाब से, उसकी यूजेबिलिटी के हिसाब से, राइट। Then fifth one is control over the price, right। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो people will divert to the another product, right। so प्राइस सबकी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फर्म भी हैं, राइट। और एंड लास्ट वन इज ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, सेम लाइक परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में भी यही था, इजी एंट्री थी, इजी एग्जिट था, इसमें भी सेम है, राइट, कि एंट्री इजी भी है, एग्जिट अगर आपकी प्रोडक्ट बंद हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स इजी, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज हमें देखने को मिली कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि बहुत सारे बायर्स थे, बहुत सारे सेलर्स थे, सिमिलर प्रोडक्ट्स थी। मोनोपोली में क्या था कि एक ही पर्सन था जो सब कुछ सेल कर रहा था, जो उसकी प्रोडक्ट सेल कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि बायर्स सॉरी सेलर्स है बहुत सारे, पर उसके जो प्रोडक्ट है उस वो यूनिक है, सबके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल अगर हम देखने जाए स्टूडेंट्स तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये थोड़ा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, राइट। जो दो कंसेप्ट देखे वो थोड़े थियोरेटिकल कंसेप्ट थे, उसमें थोड़े अजम्पशंस भी थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कंसेप्ट दिया गया है थोड़ा प्रैक्टिकल वे में दिया गया है। इकोनॉमिक की अगर हम देखने जाए एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, देन इट इज अ प्रैक्टिकल, राइट। ये एक्चुअल में पॉसिबल है। आपके आसपास हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, राइट, कि वो चीज बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत सारे जो प्रोड्यूसर से बनाते हैं, कोई भी शैम्पू ले लो या राइट कोई भी साबुन ले लो, तो हर एक में क्या क्या है, अपने अपने गुण है, अपने अपने फीचर्स है, राइट। कोई साबुन जो है वो रोज आलमंड का है जो अच्छा स्किन बनाता है, कोई साबुन है वो सॉफ्ट स्किन बनाता है, कोई हेयर फॉल के लिए शैम्पू है, हेयर फॉल रोकने के लिए, कोई डैंड्रफ दूर करने के लिए, मतलब हर एक के अपने अपने फीचर्स हैं, राइट। और हर एक अपने अपने फीचर्स के साथ यूनिक है और उसके जैसे भी मार्केट में बहुत सारे हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई दे नीड टू अंडरस्टैंड। और आप देख भी रहे होंगे कि एडवर्टाइजमेंट उसकी कितनी फ्रीक्वेंटली आती है टीवी पे, राइट। तो जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसको फायदा उतना ज्यादा होगा, लेकिन साथ में कॉस्ट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, राइट। ओके। A monopolistic market has a significant number of characteristics of a pure monopoly. Though there may be more than one supplier, the market has high prices. Suppliers tightly control availability, and barriers to entry are substantial. When there are multiple suppliers in a monopolistic market, one supplier typically dominates the others. The diamond market in the early and mid-19th century is a classic example of a monopolistic market. During that time, one company, De Beers, controlled 90% of the entire diamond market.
De Beers controlled everything from mining the diamonds to the final sales to consumers. De Beers was so powerful that it was even able to force agreements with competitors that enabled it to maintain control of the market. As a result, diamond prices were kept artificially high. Eventually, more diamond suppliers entered the market and refused to cooperate. This, in addition to government antitrust lawsuits, broke the monopoly. Governments now use their regulatory power to protect consumers from the formation of monopolistic markets. When they do form, governments attempt to break them up and fine companies that attempt to create monopolies. Where a monopolistic market is necessary, such as a utility, the government tightly regulates the market to protect consumers. Now, students, the next concept is oligopoly. Please, students, don't be confused with the names, right? First one was perfect competition, second one was monopoly, third one was monopolistic, and fourth one is oligopoly, right? Oligo means few, मतलब कुछ थोड़े, right? थोड़ा बहुत, और poly means seller, few sellers, थोड़े sellers है मार्केट में, राइट? कैसे सर थोड़े सेलर्स? तो आप जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज ले लो, राइट, तो थोड़े सेलर्स हैं। फिर टेलीकॉम कंपनीज ले लो, राइट, मोबाइल प्रोवाइडर्स जो है वो भी थोड़ी कंपनीज है, मोबाइल प्रोवाइडर्स भी थोड़े हैं। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी जो कंपनीज हैं, गिने चुने नाम जो है 7-8 कंपनीज का ग्रुप है, वो कंपनी, राइट? ओके, तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्यू सेलर्स और प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो थोड़े हैं, नियर अबाउट 7 to 8 to 10, राइट? सेकंड वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्म्स। जो भी फर्म है वो इंडिपेंडेंस है, मतलब कि अपनी खुद की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसका डिसीजन मेकिंग भी खुद ही करते हैं, प्राइस लेवल भी खुद ही डिसाइड करते हैं, राइट? एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्म। The third one is importance of the advertising and selling cost. तो यहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग का एक महत्व है, राइट? आप देख रहे होंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के बहुत सारे फ्रीक्वेंट सेट जाते हैं, टेलीकॉम कंपनीज के जियो के तो हर आईपीएल में, हर एक मैच में, हर एक ओवर के बाद आते रहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजिंग इज हायर, राइट? तो ही उसको फायदा मिलेगा, राइट? अदर जो कंपनीज है उससे ज्यादा फायदा मिलेगा, राइट? Then indeterminate डिमांड कर्व। यहाँ पे डिमांड जो है वो फिक्स नहीं है, राइट? क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकता है। अगर कोई भी फर्म जो है वो प्राइस डिक्रीज करता है तो दूसरे की डिमांड जो है तुरंत ही डिक्रीज हो जाती है, राइट? तो इसकी वजह से यहाँ पे डिमांड जो है वो इनडिटरमाइंड रहती है, मतलब कि कोई डिसाइडेड नहीं रहता है, राइट? देन कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स ऑफ द फर्म, बिल्कुल है ही। यहाँ पे कट थ्रू कंपटीशन भी है, यहाँ पे एक दूसरे को पछाड़ने में ही उसका जीत है, राइट? तो ही वो मार्केट में आगे सस्टेन हो पाएंगे। जियो ने जैसे आते ही सबको पेनिट्रेट कर दिया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड है कि उसका अगर मार्केट गिरेगा तो हमारा और ज्यादा होगा, राइट? तो एक दूसरे को गिराओ, वैसा एटीट्यूड रहता है जनरली, राइट? और बहुत थोड़े टाइम पहले जब 90s का जमाना था तब कोका कोला और पेप्सी का तो पूरा गोरिल्ला वॉर चल रहा था, राइट? कि दोनों की एक दूसरे के प्रति एडवर्टाइजमेंट आती रहती थी, राइट? तो वो पूरा मार्केटिंग कंसेप्ट है, हम वो सेकंड ईयर में समझेंगे। यहाँ पे 6 वन है प्राइस रिजिडिटी। यस, ये भी एक चीज है कि प्राइस इज रिजिड, राइट? कि अगर हमें अगर प्राइस बढ़ानी है तो हम बढ़ाएंगे, दूसरों की परवाह नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा है, पर मार्केट भले उसका ज्यादा होगा। अगर हम प्राइस कम करेंगे तो सामने औरों को भी करनी होगी, राइट? तो उससे लॉस जो है वो सबको होगा, प्राइस बढ़ाने से भी होगा, प्राइस कम करने से भी होगा। इसीलिए मार्केट रेट के हिसाब से अगर जो प्राइस रहेगा तो सबको फायदा होगा, नहीं तो एक भी अगर टेढ़ा चला तो सबका सत्यानाश हो जाएगा, राइट? क्योंकि अगर मैंने अगर आज प्राइस कम किया, राइट, तो दूसरों को भी जबरदस्ती कम करना ही पड़ेगा उसको मार्केट में टिकने के लिए। और अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो मेरा ही नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं बढ़ाऊंगा तो भी नुकसान होगा,
कम करूंगा तो उतना प्रॉफिट कम होगा, राइट। तो दोनों प्रोस एंड कॉन्स है, राइट। तो प्राइस जो है वो टोटल रिजिड रहती है ऐसी सिचुएशन में, ओलिगोपोली सिचुएशन में, जहां पे आपको प्राइस बढ़ाने का डिसीजन भी बहुत सोच समझ के लेना है, कम करने का भी सोच समझ के डिसीजन लेना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये थे दो अलग कंसेप्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, राइट। स्टूडेंट्स, few more concepts are in the market conditions, right? The next one is monopsony, right? We had seen perfect competition, we had seen monopoly, we had seen oligopoly, and we had seen monopolistic competition, right? Now we will see the monopsony, right? When a single purchaser faces many sellers, right? एक सिंगल परचेजर है, कोई भी, मैं सिंगल परचेजर हूँ और मेरे सामने बहुत सारे सेलर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट लेके बेच रहे हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली, राइट। फॉर एग्जांपल, मेनी फार्मर्स डीलिंग विद ग्रोइंग व्हीट टू पर्टिकुलर ट्रेडर हु इज मोनोपोली परचेजर। फार्मर्स का अगर हम एग्जांपल्स लें तो बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं, व्हीट का कल्टीवेशन करते हैं, और वो पर्टिकुलर ट्रेडर के पास जाते हैं जिसकी मार्केट में मोनोपोली है, जो जिसको सबसे ज्यादा उसके व्हीट जो है उसके प्राइस भी दे सकता है और क्वांटिटी भी बल्क परचेज कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिली, हियर द परचेजर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज हैव मोनोपोली। जो सेल, राइट, मतलब कि जो खरीदता है उसकी मोनोपोली है, सेलिंग करता है उसकी मोनोपोली नहीं है यहाँ पे। परचेजर इज इन मोनोपोली पोजीशन एंड सेलर आर कॉम्पिटिट विद ईच अदर। जो सेलर्स है वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है, परचेजर जो है वो क्या है, मोनोपोली सिचुएशन में, राइट। यहाँ पे उल्टा है, राइट। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, सेलर अपनी प्रोडक्ट के थ्रू क्या होता है, मोनोपोली में होता है। यहाँ पे उल्टा है, परचेजर जो है वो मोनोपोली में है, ना कि सेलर, राइट। तो इसको हम कहते हैं मोनोपोली, राइट। द नेक्स्ट वन इज बायलैटरल मोनोपोली। बिलैटरल होता है, बायलैटरल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, राइट। बायलैटरल मोनोपोली, when buyers and sellers have separate groups representing their respective interest। बायर और सेलर का एक अलग ग्रुप है, अपना अपना इंटरेस्ट जो दर्शाते हैं, राइट। बायर और सेलर का क्या है, अलग अलग ग्रुप है, और वो पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो अपना अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री ओनर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स। वर्कर्स का अलग ग्रुप होता है, ओनर्स का अलग ग्रुप होता है। दोनों ग्रुप्स अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी अपनी डिमांड्स रखते हैं, राइट। वर्कर्स का जो होता है कि सिर्फ फॉर एग्जांपल सेफ एंड हाइजीन वर्किंग कंडीशन, मतलब कि अच्छा सा एक वर्किंग कंडीशन के लिए एक सेफ प्लेस चाहिए, हाइजीनिक चाहिए, मतलब शुद्ध होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, जो रेट है, वेजेस हैं वो इतना होना चाहिए, पर डे वर्किंग आवर्स हैं वो इतना होना चाहिए। ये सारी क्या है, वर्कर्स की डिमांड रहती है। सामने ओनर्स की डिमांड रहती है, अच्छे वर्कर्स मिले, अच्छा काम करें, टाइम टू टाइम आए, टाइम टू टाइम काम करें, राइट, और जितना हो सके प्रोडक्टिविटी लाए, राइट। ऐसा नहीं कि आके बैठ के आराम से काम किया जाए, बाकी के घर चले गए, ऐसा भी नहीं, राइट। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी डिमांड्स रहती है, अपने अपने इंटरेस्ट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल मोनोपोली। दोनों की अपने अपने ग्रुप में क्या है, मोनोपोली, अपने आप में मोनोपोली है, राइट। देन लास्ट वन इज ड्यूओपोली। ड्यूओपोली नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, राइट। जैसे कि ड्यूअल सिम है वैसे ही ड्यूओपोली, राइट। देयर आर ओनली टू सेलर्स। मार्केट में जो है वो सिर्फ दो सेलर्स हैं, राइट, ओनली दो सेलर्स। टू मेनी बायर्स, बायर्स जो है वो बहुत सारे बायर्स हैं। टू प्रोड्यूसर्स हैव देयर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड कंपीटिंग ईच अदर। दोनों की प्रोडक्ट्स जो है
वो कैसी है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है और दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट। जनरली ऐसा कैसे होता है कि जनरली जो मार्केट में अगर आप सिंपल डुओपोली देखने जाओ तो जैसे कि मैं कह सकता हूँ तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, राइट, हाँ है, बहुत सारे हैं, अदर ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं, पर अगर हम यहाँ पे देखने जाएं तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो है वो डुओपोली में है, राइट। वैसे ही अगर हम देखने जाए तो एयरटेल प्लस जियो, right, they have also duopoly. Yes, Vodafone Idea is there, BSNL is also there, but we cannot compare them with this, right. So two sellers, only two sellers are there. Previously generally Boeing और Airbus, बोइंग और एयरबस जो दो कंपनी है वो परफेक्ट डुओपोली के एग्जांपल में थे, राइट। वो दो ही ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। आप जो एयरक्राफ्ट देख रहे हो वो दो ही कंपनी है, राइट, बोइंग और एयरबस, ये दो ही कंपनी है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, बाकी और कोई नहीं करता है, राइट। सो ये दोनों परफेक्ट एग्जांपल है डुओपोली के, राइट। So students, this is the end of our chapter as well as syllabus of economics, right. यहाँ पे मेरी ओर से सिलेबस कंप्लीट होना ये तो चलो हो गया और हो भी जाएगा, पर एक्चुअल में मुझे चाहिए कि आपकी ओर से कंप्लीट हो, राइट। अगर आपका रीडिंग और राइटिंग रहेगा जैसे मैंने कहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, राइट। और अगर नहीं रहा है तो फिर ऊपर वाला ही आपकी मदद कर सकता है, राइट। ये मैं जस्ट कह रहा हूं क्योंकि मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूं, राइट। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने क्लियरली ध्यान नहीं दिया तो आप आगे जाके बहुत बड़ी ट्रबल में फंसने वाले हो, ये पक्का है, राइट। आपको डरा नहीं रहा हूं मैं, जो फैक्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको मिरर इमेज दिखा रहा हूं कि ऐसा होगा। मैं हर रोज देखता हूं कि YouTube लेक्चर्स जो हैं वो सिर्फ 4 व्यू ही होते हैं, 4 में से एक तो मैं ही आ गया, राइट, मेरा व्यू ही आ गया, दूसरा जो अपलोड करता है उसका व्यू आ गया, सिर्फ एक तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है दैट आई डोंट नो। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे मेरी ओर से तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, पर आपकी ओर से क्या रहेगा रिस्पॉन्स ये जरूरी है, राइट। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, सिलेबस अब खत्म हो गया है, अब आपका रीडिंग और राइटिंग होना जरूरी है, आपके एग्जाम्स के डेट्स आ चुके हैं, राइट। तो जरूरी है कि आप ये सब कुछ खत्म करें, अपना सिलेबस पूरा एक बार पढ़ें, राइट। जहां जहां पे भी डाउट है आप बेशक बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू।